Hello dear students, welcome back to our channel. Okay, so today we are going to start with a new topic, that is gynoecium, which is also known as pistil. Okay, last time we studied the complete development of a male gametophyte. Okay, how does a male gametophyte develops first within the pollen sac and then when it is placed on the stigma. So we learned complete development of a pollen grain last time of a male gametophyte. Now today we are going to start with what is the female reproductive part of a flower and how does it work, like how does it gets matured, how it is produced and how it is developed. Okay, just like the male development of a male gametophyte, we are going to study about the development of a female gametophyte. So let's try to first understand in detail that what are the characteristics of the female reproductive part of a flower. Do not forget, we are studying about the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction taking place in lower and higher plants. So today we are going to start with the female reproductive part of the flower. Okay, alright. So what is the female reproductive part of the flower known as? It is known as gynoecium. What is it known as? Gynoecium. Last time we studied that the male reproductive part of a flower. What? The male reproductive part of a flower. That is the filament and the anther. This thing is known as what? Androecium. What do we call it as? Androecium. And if this is called as androecium, then what will be the female reproductive part be known as? It will be known as gynoecium. Now here is one trick that I gave to my students. Whether it is useful to everybody or not, it depends upon the person. Okay, so the trick to remember that what is the terminology used for male reproductive part of a flower and female reproductive part of a flower. The small trick is, as we all know that G for girls, okay, we pronounce G for girls. So G for gynoecium. Now this is some vague way. ये एकदम ऐसे रैंडम तरीका है, एक रैंडम ट्रिक है. किसी को यूजफुल हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है. नो ऑफेंस टू एनीथिंग. ओके, आई जस्ट वांट यू टू रिलेट इट टू योर रेगुलर लाइफ सो दैट इट इज मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड मोर इजीली you are able to learn it. Okay, so G for girls, G for gynoecium. Okay, so what is the female reproductive part of a flower known as? It is known as gynoecium. The another name for gynoecium is pistil. Okay, you have learned about pistillate and apistillate flower in your 11th standard morphology chapter. I just want you to go through it once. Anyways, so here just the terminology you should remember that what is the alternate term for female reproductive flower part of the flower, that is pistil. This is what the gynoecium looks like. Now I want you people to help me in labeling the diagram. Okay, this we have done n number of times while we were studying in the last lecture the development of male gametophyte. We studied about this at that time also. So the labeling is pretty easy. Okay, can you help me? Yes. What is this part? The base part known as, the lower part, it is known as ovary. To the students who are able to answer, very good. To those who are confused, not a problem. You just need to keep a little more focus in your studies. Okay, the part which is above the ovary is known as what? The one that is connecting the stigma and the ovary. It is known as style. Very good to those who were able to answer, and no problem if some students couldn't answer it. And now come on, everybody must know that what is this thing known as, the top part of the female reproductive part. It is known as what? Last time we studied, it is known as stigma. Very good students, those who were able to answer it. Okay, so as you can see, this is what we are going to study today, the female reproductive whorl of a flower, which is known as what? Gynoecium. Okay, so the first point, as I am repeating since last 5 minutes, that what is a female reproductive flower? It is nothing. What is a female reproductive flower? It is known as gynoecium. Okay, it is the female reproductive whorl of a flower. Now in my second or third lecture we discussed about whorls. What are the whorls? Whorls are nothing but the parts of flower. 2 essential whorls and 2 accessory whorls, something if you remember. Okay, so this one is the essential whorl since it is important and no reproduction can take place without it.
इसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए ये एसेंशियल है। एक्सेसरी मतलब हेल्पर, जिसके होने या ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द whorl, like of the female reproductive whorl, is known as कार्पल। ओके, मतलब फ्लावर के इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलेंगे कार्पल। मतलब समझिए आपका कोई फ्लावर है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कंसीडर, now suppose, okay, don't judge me on my drawing please. Now suppose this is a flower, these are the petals of a flower. I am drawing the female reproductive whorls over here. Okay, I drew one whorl, I drew another whorl, I drew another whorl. So all these are nothing but these are the whorls of a female reproductive. Okay, so now as you can see that I have drawn multiple ovaries over here, like multiple pistils are drawn over here, 3 pistils are drawn. So individual reproductive part is known as what? कार्पल। एक कंप्लीट पार्ट को हम बोलेंगे कार्पल। ये जो बहुत सारा होता है तो इसके लिए टर्म्स बदल जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कवर किया है और आपने ये 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, नॉट टू वरी अबाउट इट। इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलेंगे? कार्पल। यही चीज मैं आपको बताना चाहती थी, दैट इंडिविजुअल मेंबर इज नोन एज कार्पल। Carpel is nothing but your megasporophyll. Very important word, dear students. Megasporophyll. What is this? जब हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, मेल गैमेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने माइक्रोस्पोरोफिल ये वर्ड यूज किया था। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, तो उसका अपोजिट होगा मेगा। व्हाट इज मेगा? मेगा मीन्स कंपैरेटिवली बिग। स्पोरो का मीनिंग मैंने क्या बताया था? स्मॉल स्मॉल स्पोर्स, सीड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो स्पोरो का मतलब क्या होगा? स्पोर्स। एंड फिल, फिल मीन्स an organ which is containing these spores. So it is like a bag or you can say sac. Okay. So एक कार्पल को अगर मैं यहाँ पर इसको जूम करके बताऊं, so this is your single कार्पल। एक कार्पल का दूसरा टर्म क्या है? मेगास्पोरोफिल। इसको मेगास्पोरोफिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर हमको ढेर सारी एम्ब्रियो सैक के अंदर ओवरीज देखने को मिले, ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ओव्यूल्स, नॉट ओवरीज, ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स। वी विल स्टडी अबाउट इट, डू नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट इट। ओके, so individual member is known as carpel. The another term for carpel is megasporophyll because it is nothing but a sac which is containing the spores. Each carpel consists of what? आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमने ये पहले ही लेबल कर लिया। एक कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, स्टाइल द कनेक्टिंग लिंक एंड द स्टिग्मा which will attract the pollen grain. आपको तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा नहीं है, पर आपको ये फंक्शन बाय हार्ट होने चाहिए। What is the function of ovary? It produces ovules. What is the function of style? It connects stigma to ovule. And what is the function of stigma? It attracts pollen grain because it contains sugary substance on it. Okay, all right. Now comes ये हमने ये तो देख लिया कि एक कार्पल में क्या होता है। 3 चीजें होती है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो अब हम देखेंगे कि ओवरी में जो ओव्यूल्स होते हैं वो थोड़े से उनका नंबर वेरी करता है। सी लुक हियर, इन ओवरी नंबर ऑफ ओव्यूल्स वेरी। जैसे कि जो ये मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं लाइक पैडी, व्हीट, मैंगो, जिनमें सिंगल सीड होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनी ओव्यूलेट। यूनी मीन्स व्हाट? 1 एंड ओव्यूलेट मीन्स व्हाट? सीड। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, पैडी मतलब राइस, कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज। पैडी मतलब क्या होता है? राइस। राइस इज अ मोनोकॉटिलेडॉन, व्हीट इज अ मोनोकॉटिलेडॉन एंड मैंगो इज अ मोनोकॉटिलेडॉन। So they are known as uniovulate. Okay, and tomato and lady's finger, आपने सबने टोमेटो तो देखा ही होगा, आपने टोमेटो भी देखा होगा और आपने भिंडी भी देखी होगी। So tomato and lady's finger, they are known as multi-ovulate. क्या बोलते हैं हम टोमेटो और lady's finger को? Multi-ovulate. I hope that this is clear to you.
So what do we call tomato and lady's finger as? Multi-ovulate. Okay. Paddy, wheat and mango सिंगल सीड वाले को हम बोलेंगे यूनिओव्यूलेट. टोमेटो एंड लेडीज फिंगर जिनमें बहुत सारी सीड्स होती है इनको हम बोलेंगे मल्टी ओव्यूलेट, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी सीड्स होती है. ओके, आई होप यू आर विथ मी. नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट गायनोशियम इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्पल. कार्पल जो है ये एक सिंगल कार्पल है. कार्पल दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस. अब टेक्निकली मैं ये चाहती थी कि मैं ये आप लोगों को होमवर्क दूं कि आप लोग अपने 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से ये फाइंड आउट करें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो रिवीजन के लिए भी देखेंगे तो उनके लिए ये काम डबल ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है. बट यू हैव टू गो थ्रू इट इन फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. डू नॉट फॉरगेट टू रीड इट फ्रॉम दैट. सो यहाँ पर दो टाइप के कार्पल मैंने कौन से बताए हैं, एक अपोकार्पस और एक सिनकार्पस. अपोकार्पस मतलब क्या होता है, जब आपके फ्लावर में बहुत सारे कार्पल्स है और सारे कार्पल्स फ्री हैं, मतलब इंडिविजुअल है, ये एक सिंगल है, ये एक सिंगल है, ये एक सिंगल है, इसको हम बोलते हैं अपोकार्पस. और सिनकार्पस में क्या होगा, सिनकार्पस में आपको कोई ऐसी चीज देखने को मिलेगी जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ. सपोज दिस इज योर फ्लावर, ये ओवरी, और सिनकार्पस में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा कि एक ओवरी है और उसमें से ढेर सारे स्टाइल और स्टिग्मा निकल रहे हैं. तो ऐसा कुछ पिक्चर आपको देखने को मिलेगा सिनकार्पस में, जिसमें होंगे बहुत सारे ओवरीज, लेकिन वो सारे के सारे फ्यूज्ड होंगे. क्या होंगे, सारे के सारे फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे. सो यू मस्ट नो दैट विच आर द टू टाइप्स ऑफ कार्पल. I hope you have understood what is apocarpus and what is syncarpus. Now the next point that we are going to understand is that what is actually gynoecium, like what is the actual characteristic of it. So a gynoecium or an ovule is nothing but it is an integumented layered megasporangium of seed bearing plants. Okay, so what is a gynoecium? It is nothing but an ovule which is covered with a multiple layers. ये जो integumented का मतलब क्या होता है, ये जब हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब इसके जस्ट बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें आपको क्लियरली इंटीग्यूमेंट्स का मतलब समझ में आएगा. फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इंटीग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, लेयर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, लेयर्स. सो एन ओव्यूल, ओव्यूल मीन्स ओवरी के अंदर जो ये सिंगल 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 सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उस सिंगल सीड को हम बोलेंगे ओव्यूल. ओके, और एक ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारे स्मॉल 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 सेल्स होते हैं. So an ovule is integumented layered megasporangium. Megasporangium क्यों बोला इसको हमने, because it contains spores in it. So an ovule is integumented layered megasporangium of seed bearing plants. सीड बेरिंग प्लांट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि दो तरीके के प्लांट्स होते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड प्रोड्यूस होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड नहीं प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो ये हम उस प्लांट की बात कर रहे हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सीड की जरूरत नहीं होती है. ओके, आई होप दैट दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी क्लियर इन योर हेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू बी कवर्ड इज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओव्यूल 6 टाइप्स के होते हैं. ओके, फर्स्ट होता है ऑर्थोट्रोपस, या उसका दूसरा नाम है ऑट्रोपस, जिसका मतलब होता है इरेक्ट. इसमें क्या होता है कि आपका जो चलाजल एंड है वो नीचे की तरफ होगा और माइक्रोपाइल जो है वो ऊपर की तरफ होगा. ओके, एनाट्रोपस, हमको ये चीज डिटेल में स्टडी करनी है. ये बाकी सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए दी है. आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी दूर दूर तक इन वर्ड्स का जिक्र नहीं है, तो आप इसके बारे में प्लीज कंफ्यूज मत होना. ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, हमको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है. ओके, नाम देख लेते हैं 6 टाइप के ओव्यूल्स कौन कौन से होते हैं. पहला होता है ऑर्थोट्रोपस, जिसका दूसरा वर्ड है एट्रोपस या इरेक्ट बोलते हैं इसको हम. अब नेक्स्ट होता है एनाट्रोपस. एनाट्रोपस मींस इन्वर्टेड, उल्टा. अगर ये सीधा है, इसका चलाजल एंड नीचे है और माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा. माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा और चलाजा ऊपर की तरफ चला जाएगा. ओके, और फिर और ये सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में. फिर थर्ड और फोर्थ आपके आता है हेमीट्रोपस एंड कंपाइलोट्रोपस. हेमी बोला मतलब कि हाफ, ऐसे कर्व्ड हो जाता है, वो थोड़ा सा
उसका बॉडी हॉरिजॉन्टल हो जाता है. द बॉडी ऑफ द हेमिट्रोपस और कंपाइलोट्रोपस इज कर्व्ड एंड द फिफ्थ वन इज एम्फिट्रोपस in which both the body and the embryo sac is curved. इसमें से बॉडी कर्व होती है, अंदर का एम्ब्रियो सैक वैसा ही होता है. इसमें बॉडी के साथ साथ एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो जाता है. और the sixth one is Sarkinotropus, जिसमें funiculus is coiled around the ovule. What is funiculus? We are going to study about it now. Funiculus is nothing but the supporting stalk of your ovule. Okay. The last point of gynoecium. Actually, I wanted to give you this as homework, but still I have written the definition of it. What is megasporogenesis? Mega means nothing. Mega means what? It is nothing but big spores. Production. Genesis is what? Synthesis or production. So formation of megaspores. Megasporogenesis means what? Formation of megaspores and development of female gametophyte takes place inside the ovule. This is known as megasporogenesis. I hope I am very clear to you. Okay, this is known as what? Megasporogenesis. Let me tell you, we are studying about single ovule. We are not studying about ovary. We are studying about a single ovule. ovary के अंदर जो एक सिंगल ओव्यूल है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड मार्क योर इम्पोर्टेंट नोट्स. ओके, तो हमने गायनोशियम के बारे में, मतलब एक कार्पल के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक सिंगल ओव्यूल के बारे में. बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए वापस से एक बार बता देती हूँ. ये आपका गायनोशियम है, ये आपका ओवरी, ये आपका स्टाइल और ये आपका स्टिग्मा. ओके, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा यूनी ओव्यूलेट और मल्टी ओव्यूलेट. राइस में सिंगल ओव्यूल होगा और लेडीज फिंगर में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे. ये एक ओव्यूल कैसे डेवलप होता है या एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है वो यहाँ पर हमको दिया गया है. ओके, हमेशा याद रखो कि सारे ओव्यूल ओवरी के अंदर ही डेवलप होते हैं. स्टूडेंट्स प्लीज इस चीज को अच्छे से नोट करना. ये ओवरी है और ओवरी के अंदर जो सेल्स हैं, जो स्पोर्स हैं, वो है ओव्यूल्स. क्या है वो? ओव्यूल्स. तो हम ऐसे ही एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं. ओके, ये मैंने क्या टाइटल दिया है इसको? द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा कंसर्न जो है इट इज विद एनाट्रोपस. एनाट्रोपस मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड, जिसका चलाजल एंड ऊपर होगा और माइक्रोपाइल नीचे होगा. ओके, so we are going to study about the structure of anatropous ovule. Now as you can see in the given diagram how the ovule looks. This is a developed ovule. ये एक डेवलप्ड ओव्यूल है जो दिखने में कुछ इस तरीके से है, जिसका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड मतलब सिर्फ इतना कि इसका माइक्रोपाइल ओपनिंग एंड नीचे की तरफ है और क्लोज्ड एंड ऊपर की तरफ है, बस. इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. ओके, अभी यहाँ पर देखिए, हम हर एक, मैंने जितनी भी लेबलिंग यहाँ पर की है, हर एक लेबलिंग का हम फंक्शन देखने वाले हैं. तो उसका आप टेंशन मत लो, सिर्फ एक लुक ले लो, डायग्राम की तरफ एक बार देख लो. जस्ट हैव अ लुक एट द डायग्राम so it gets embedded in your brain. Okay, what are the important parts of the anatropous ovule? See, starting with this is the placenta, जहां से आपका ओवरी से ये ओव्यूल अटैच होगा, जहां से सारा न्यूट्रिशन मिलेगा आपके ओवरी को. मतलब कि समझो, अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं, समझो दिस इज योर फ्लावर, यहाँ पर आपका ओवरी है, स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो ये पार्ट जहां से आपका ये सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होगा, दिस पार्ट इज नोन एज प्लेसेंटा. मतलब जहां पर आपका ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड है, व्हेन योर ओव्यूल इज अटैच्ड टू द ओवरी, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे, दैट पार्ट इज नोन एज प्लेसेंटा. इतना ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, स्टिल आई हैव मेंशन्ड इट. सो जो स्टूडेंट्स क्यूरियस होंगे उनके लिए मैंने मीनिंग बता दिया है. जहां पर ओव्यूल अपनी ओवरी से कनेक्ट होता है, क्या बोला मैंने? ओव्यूल अपनी ओवरी से कनेक्ट होता है for the supply of nutritions, that part is known as placenta. प्लेसेंटा को कौन कनेक्ट करता है ओव्यूल से? एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर, एक छोटा सा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस. इसी को फ्यूनिकल भी बोल सकते हैं. फ्यूनिकल हमारे ओव्यूल से कहां पर अटैच्ड है?
हीलम ये हमने बहुत बार वर्ड पढ़ा है, किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, एक्सक्रीशन जो 11th स्टैंडर्ड में था। अटैचमेंट मतलब जहां से आपका कोई स्टॉक आपके मेन ऑर्गन से अटैच होता है, उस अटैचमेंट वाले पॉइंट को हम बोलते हैं हीलम। ओके, सो दिस इज योर अटैचमेंट पॉइंट विच इज नोन एज हीलम। उसके बाद आता है आपका अंदर का एम्ब्रियो सैक। ये अंदर का जो है ये एग जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर कुछ अलग अलग सेल्स दिए गए हैं। मैं वापस बोल रही हूँ, हम हर एक सेल का फंक्शन देखेंगे। ऊपर की तरफ जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपोडाल। नीचे की तरफ जो सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं नीचे की तरफ, साइड के 2 सेल्स को बोलेंगे सिनर्जिड, और जो सेंटर सेल है दैट इज योर एक्चुअली फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलेंगे एग सेल। बीच में जो है दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियाई। कैसे बना, इसका क्या फंक्शन है, वी विल हैव अ लुक एट इट। फिर ये इंटीग्यूमेंट्स की बारी आती है, मतलब जो हमारे एम्ब्रियो सैक को अंदर कवर कर रहा है, आउटर लेयर और इनर लेयर, इनको हम बोलेंगे इंटीग्यूमेंट्स। ओके, मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे लेबल्स बता दिए हैं। ये माइक्रोपाइल है, ये नीचे वाला ओपनिंग माइक्रोपाइल है। देखो यहाँ पे कंप्लीटली क्लोज नहीं है, यहाँ पर आकर ये लेयर इनकम्प्लीट हो जाती है। सो इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड द कवर्ड पार्ट इज नोन एज चलाजा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ओव्यूल। फर्स्ट वन, ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी। मैंने अब भी बताया कि ये आपकी ओवरी है। सारे ओव्यूल कहाँ डेवलप हो रहे हैं, ओवरी के अंदर। सो ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी। ये सिंगल ओव्यूल है। ओके, ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। सो ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। हमारे ओव्यूल के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है बॉडी। मैंने अभी थोड़े सेकंड्स पहले बोला था, व्हाट इज अ स्टॉक? It is nothing but funiculus, the supporting structure. See, the 2 main parts are stalk and body. What are the 2 main parts of an ovule? Stalk and body. Stalk क्या होता है? It is also known as funiculus. क्या function है इसका? Funiculus attaches ovule with placenta. ये funiculus क्या करेगा? हमारे ovule को placenta से attach करने में help करेगा। उसका function, it provides support to the ovule. इट प्रोजेक्ट करता है, मतलब थोड़ा ऊंचा कर देता है हमारे ओव्यूल को। प्लेसेंटा से थोड़ा सा दूर लेके जाता है, मतलब थोड़ा सा उसको हाइट देता है ताकि वो पोलन ग्रेड को आसानी से अट्रैक्ट कर सके। एंड कंडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोविजन, प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू जाएगा? ओव्यूल तक, फ्यूनिकुलस के थ्रू। प्लेसेंटा से सारा न्यूट्रिशन फ्यूनिकुलस में, फ्यूनिकुलस से ओव्यूल। Am I clear? So this is about stalk. Simple and very easy. Next comes body. This is a little complicated part. First, let's see the introduction of the body. It is the swollen part of ovule. At its tip is called body. ये this part is known as body. Funiculus के ऊपर का जो swollen part है, जो फूला हुआ part है, this part, the broad part is known as body. The stalk is attached to ovule at hilum. हमारा ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक हमारे ओव्यूल से कहां पर अटैच्ड है? हीलम। मतलब जहां पर भी समझो ये आपका ओव्यूल, ये आपका स्टॉक। इस स्टॉक को मैंने यहां से अटैच कर दिया, तो इस पार्ट को मैं क्या लेबल करूंगी? हीलम। ओके, आई होप हीलम का मतलब आपको अच्छे से समझ गया होगा। हीलम मीन्स व्हाट? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। रिपीट, what is hilum? It is nothing but point of attachment. So this is about stalk and this is the introduction of body. Now body contains many things. It contains of many parts. Okay, synergid, outer, inter, embryo, chalaza, etc., etc. Let's see. Let's have a look at it in detail. Okay. So now we studied what is stalk and we had a look at what the introduction of the body. This is the body. Now we will study about the different parts of the body. Okay, I forgot to label this thing earlier. This the part which is outside the embryo sac. This part, the part which is outside the embryo sac, the dotted part, is known as nucellus. What is it known as? Nucellus. Please label it in your diagram. पहले लेबल नहीं हुआ था ये, तो अब लेबल कर देना ये अपने डायग्राम में। Okay, so the parts of the body of an ovule. ओव्यूल के बॉडी पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, विच इज द फर्स्ट पार्ट विच आई हैव मेंशन्ड? इट इज नथिंग बट न्यूसेलस। व्हाट इज न्यूसेलस? एज यू कैन सी, इट इज द मेगास्पोरेंजियम ऑफ ओव्यूल। मतलब आपका ये जो एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर आपका फीमेल गैमेट है, वो
न्यूसेलस में प्रेजेंट है. ओके, मतलब ये बाहर का एरिया इज न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो सैक. सो इट इज मेगास्पोरेंजियम ऑफ ओव्यूल कंसिस्टिंग पैरेन्काइमेटस टिश्यू. मतलब ये जो न्यूसेलस है इसमें ये जो डॉट 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 मैंने बनाया है, ये डॉट स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू. अब पैरेन्काइमेटस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? हमने क्या पढ़ा है? व्हाट इज पैरेन्काइमा? It is an intermediate type of a tissue. It acts as a permanent tissue as well as simple tissue as well. Okay, ये permanent tissue जैसा भी काम करता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा भी काम करता है. मतलब जब कहीं पर भी हमको नए सेल्स की जरूरत होती है तो पैरेन्काइमा हम यूज करते हैं, बिकॉज उसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी ऑलवेज होती है. ओके, सो ये जो न्यूसेलस है, दिस न्यूसेलस इट contains embryo sac and it is made up of parenchymatous tissue. What is the function of nucellus? It encloses embryo sac. मतलब ये जो न्यूसेलस है ये अपने अंदर एम्ब्रियो सैक को बंद करके रखता है. बाहर न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर क्या कवर्ड है, मतलब क्या एनक्लोज्ड है? एम्ब्रियो सैक. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंटीग्यूमेंट्स. इंटीग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? लेयर्स. हमने फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन में देखा था गाइनोशियम के. मैं आपको बता रही थी कि इंटीग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो अब देखो, अब आपको क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्यूमेंट्स? इंटीग्यूमेंट्स मींस लेयर्स. ओके, 2 लेयर्स बताई गई है यहाँ पर हमको. सो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, अब मैंने यहाँ पर 2 ड्रॉ किया है क्योंकि हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं. सो मोस्ट एंजियोस्पर्म्स आर बायटेग्मिक. बाय मींस 2, टेग्मिक मींस लेयर्स. सो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में हमको क्या देखने को मिलती है? हमको बायटेग्मिक लेयर्स देखने को मिलते हैं. दैट इज नथिंग बट 2 इंटीग्यूमेंट्स. डेवलपमेंट फ्रॉम द चलाजल पार्ट ऑफ द न्यूसेलस. ये जो इंटीग्यूमेंट्स है इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है? इन इंटीग्यूमेंट. सो एज यू वर सेइंग दैट द डेवलपमेंट फ्रॉम द चलाजल पार्ट ऑफ द न्यूसेलस, व्हाट डज दिस मीन? पहली चीज तो इंटीग्यूमेंट्स, एंजियोस्पर्म्स में 2 इंटीग्यूमेंट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं बायोटेग्मिक. और ये इंटीग्यूमेंट्स डेवलप कहाँ से होते हैं? ये आपका चलाजल पार्ट है, चलाजल पार्ट से ही ये लेयर्स बनना डेवलप होते हैं. प्लीज रिमेंबर, इंटीग्यूमेंट्स का ओरिजिन कहाँ से है? द ओरिजिन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स फ्रॉम द चलाजल पार्ट. ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? दैट द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स टेक प्लेस फ्रॉम द चलाजल पार्ट ऑफ द न्यूसेलस. सिंपल फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स. क्या फंक्शन होगा इंटीग्यूमेंट्स का? लेयर्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन ऑफ न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक. आउटर एजेंट से या बाहर के किसी भी मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. द इंटीग्यूमेंट्स फंक्शन एज द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूसेलस एंड द एम्ब्रियो सैक. ये आउटर लेयर्स और इनर लेयर्स जो है ये मिलके हमारे इनर कंपार्टमेंट ऑफ ओव्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं. प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, before looking at the next part of the body, the integuments has 2 more important points. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब जब हम पढ़ेंगे कि जब पोलन ग्रेन और ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं, तो ये इंटीग्यूमेंट्स का और एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये फंक्शन का सेकंड पॉइंट है. फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा इट प्रोटेक्ट्स द न्यूसेलस एंड द एम्ब्रियो सैक. फंक्शन का सेकंड पॉइंट है दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इंटीग्यूमेंट के लेयर्स जो है वो सीड कोट बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं वो? सीड कोट. आउटर लेयर जो है वो थिक होती है और रेजिस्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं टेस्टा. ओके, द आउटर लेयर इज द थिक वन, द थिक लेयर विच इज नोन एज द टेस्टा. एंड द इनर लेयर, ये जो इनर इंटीग्यूमेंट है, इट इज द थिन एंड द ट्रांसपेरेंट वन विच इज नोन एज टेगमेंट. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. Okay, now comes the next part of the chalaza, the next part of the body, which is nothing but chalaza. What is the function and characteristics of chalaza? It is the basal part of nucellus. अगर आप इसको ऐसा उल्टा करके देखो तो ये चलाजा जो है ये हमारे न्यूसेलस का बेस वाला पार्ट है, पर जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ रहे हैं. मैं वापिस बोल रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. यहाँ पर बेसल वर्ड जो मैंने लिखा है, बेस का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ नीचे का ही बेस हो सकता है. दिस इज ऑल्सो द बेस एंड दिस इज ऑल्सो द बेस. सो चलाजा इज नथिंग बट द बेसल पार्ट ऑफ द न्यूसेलस which is present in the opposite direction of micropyle. This is the chalaza. Okay, it is present in the opposite to micropyle and from where the integuments develop. मतलब chalaza से ही हमारे integuments का development start हो रहा है. Please make sure that you note it. Okay, now comes your micropyle. Micropyle is nothing but again the opposite end of chalaza. Chalaza is opposite to micropyle. Micropyle is opposite to chalaza. Okay,
It is nothing but it is a narrow opening at the apex. It is a narrow opening at the apex or you can say terminal end of nucellus. Nucellus के end की तरफ है micropyle. Function क्या है nucellus micropyle का? It forms passage for entry of pollen tube in ovule during fertilization. जब आप fertilization पढ़ेंगे, समझो ये मैंने एक ओव्यूल बनाया है, ये अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक है और ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है। तो समझो कि हमारा यहाँ पर पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है। ये यहाँ पर पोलन ग्रेन बैठा हुआ है। ये पोलन ग्रेन अपना जो पोलन ट्यूब बनाता है, वो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल के एंड से। कहाँ से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल से। सो इसलिए माइक्रोपाइल का फर्स्ट फंक्शन क्या है? ये पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए, पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। पैसेज मतलब एरिया प्रोवाइड करता है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। सेकेंड फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर एंड रेडिकल कम्स आउट थ्रू इट। और जब सीड जर्मिनेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे सीड हमारे जाइगोट को न्यूट्रिशन चाहिए, तो वाटर भी यहीं से जाएगा माइक्रोपाइल एंड से। और जब सीड धीरे धीरे करके जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो पहला प्लांटलेट मतलब पहला जो पार्ट निकलता है हमारे सीड में से, पहले मतलब जब सीडलिंग बनती है तो उसमें से जो पहला पार्ट निकलता है दैट इज रेडिकल। ओके, जो रूट बनता है आगे जाके, तो वो रेडिकल भी कहाँ से निकलता है? दैट रेडिकल ऑल्सो कम्स आउट फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड। डोंट वरी, ये हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसा होता है कि समझो दिस इज योर ओव्यूल, दिस इज योर माइक्रोपाइल एंड, यहाँ से आपका पहला रेडिकल निकलेगा। सो माइक्रोपाइल से ही रेडिकल निकलेगा, माइक्रोपाइल से ही वाटर जाएगा और माइक्रोपाइलर एंड से ही पोलन ट्यूब एंटर करेगा। वापिस बताती हूँ, ये आपका ओवरी, ये आपका स्टाइल, ये आपका स्टिग्मा, यहाँ पर आपका पोलन ग्रेन बैठा है, यहाँ पर आपका है ओव्यूल। ओके, तो ये आपके पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब आया और माइक्रोपाइल से एंटर किया। This is the first point, and the second is nothing but micropylar end provides water and radical comes out of it. Okay, alright. The next part. Okay, so the next part of the body is embryo sac. Embryo sac is nothing but it is an oval multicellular structure which is embedded in the nucellus. See this part. This egg-like structure is your embryo sac. इट इज नथिंग बट मल्टीसेल्युलर, बहुत सारे सेल्स है इनके अंदर। और ये कहाँ पर है? ये एम्ब्रियो सैक कहाँ पर प्लेस्ड है? दिस एम्ब्रियो सैक इज प्लेस्ड, दिस एम्ब्रियो सैक इज प्लेस्ड इनसाइड द न्यूसेलस। कहाँ पर प्रेजेंट है ये? न्यूसेलस में। न्यूसेलस के बीचों बीच ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। अगर आपने काउंट किया होगा तो सेल्स आपको इजीली पता चलेंगे कि 7 प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडाल सेल्स, नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड और एक सेल, एक एग सेल दैट इज 6, और ये सेंटर सेल जो है 7। सो 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। अब 8 न्यूक्लियाई कैसे है? ऊपर 3 न्यूक्लियस, नीचे 3 न्यूक्लियस, 6। और ये जो सेंट्रल सेल है जिसको हमने सेकेंडरी न्यूक्लियाई लेबल किया है, इट कंटेन्स ऑफ 2 न्यूक्लियस। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सो टोटल कितने सेल्स प्रेजेंट है हमारे एम्ब्रियो सैक में? 7 सेल्स प्रेजेंट है और 8 न्यूक्लियस है। ये एंट्रेंस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखो और इसको स्टार मार्क करके नोट कर लो। दैट द एम्ब्रियो सैक कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स 7 cells and 8 nuclei. Okay, now comes the egg apparatus. Egg apparatus as in nothing but the cells which are present inside the embryo sac. Embryo sac के अंदर के cells को डिस्क्राइब किया है हमने। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स है, नीचे की तरफ जो 3 सेल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से सेल्स है? 3 celled egg apparatus at micropylar end. First, it consists of central egg cell. सेंटर में क्या प्रेजेंट है? एग सेल प्रेजेंट है which is nothing but oosphere, and it also consists of 2 lateral synergids. ये साइड के एग सेल बीच में है, एग सेल के ये एग सेल है, एग सेल के साइड में क्या प्रेजेंट है? 2 synergids. ओके, लेटरल सेल्स आर नथिंग बट योर synergids. synergids का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि हम एग apparatus देख रहे हैं, मतलब कौन कौन से एग प्रेजेंट है हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये हो गए नीचे के 3 सेल्स।
अ सिंगल लार्ज सेंट्रल सेल, अब हम सेंट्रल सेल की बात कर रहे हैं, विच इज कवर्ड विथ मदर वॉल ऑफ मेगास्पोर। मतलब कि ये हमारा जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल का ये दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर ये सेंट्रल सेल बनता है। तो इसका मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ लार्ज इन साइज एंड इट हैज काइंड ऑफ thick outer layer. Okay, so it is covered with mother megawall of megaspore and it has two haploid polar nuclei. इस एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं? 2। कितने न्यूक्लियाई हैं? 2। क्या होता है कि यहाँ पर 4 होते हैं इनिशियली और यहाँ पर 4 सेल्स होते हैं। तो एक सेल यहाँ से आ जाता है, एक सेल यहाँ से आ जाता है, बन जाता है एक सेंट्रल सेल, और जिसके अंदर आपके फ्यूज हो जाते हैं 2 न्यूक्लियस। इसीलिए बोला है दैट इट कंटेन्स 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। आप उसके बारे में पढ़ेंगे आप। दीज पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस विथ ईच अदर, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले। इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंस है जो आप आगे पढ़ने वाले हो। आई रिपीट, इसका इंपॉर्टेंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना देखो कि ये होता क्या है। इट इज अ सेंट्रल सेल which is a single cell. It is made up of 2 different cells. Fuse होके सिंगल सेल बनता है, लेकिन अंदर न्यूक्लियस 2 होते हैं। ओके, टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, डिप्लॉयड क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है हमारे एग एपैरेटस का? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये सारे के सारे सेल्स की वजह से हमको सक्सेसफुली क्या मिलेगा? एक डिप्लॉयड जाइगोट। क्या मिलेगा हमको? एक डिप्लॉयड जाइगोट, जो आगे जाके डेवलप होके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग एपैरेटस। ओके, नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। Okay, the function of synergids, it plays supportive role in fertilization and it degenerates later on. ये जो synergids हैं जो एक सेल के नीचे प्रेजेंट है, तो ये एक सेल को सपोर्ट करते हैं in terms of nutrition, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जब पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर जाती है और मेल गैमेट्स अंदर अलाउ हो जाते हैं, तो ये सिनर्जिड्स बाद में डीजनरेट हो जाती है। उनका लेटर स्टेज पे कोई यूज नहीं है। द फिलिफॉर्म अपैरेटस ऑफ सिनर्जिड्स, द फिलिफॉर्म अपैरेटस एंड सिनर्जिड, इट अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फिलिफॉर्म अपैरेटस मतलब ये, यहाँ पर देखो एंटीपोडल सेल्स तीनों एक साथ प्रेजेंट है, मतलब एक लाइन में पैरेलली। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक सेल थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और सिनर्जिड्स थोड़े से साइड में है। इसको हम फिलिफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलिफॉर्म अपैरेटस। मतलब समथिंग लाइक दिस, 1 2 एंड दिस इज द फिलिफॉर्म अपैरेटस। तो जब पोलन ट्यूब को अंदर आना होता है तो ये सिनर्जिड सेल्स जो है धीरे धीरे करके डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और पोलन ट्यूब एक सेल के साथ कम्युनिकेट करने लग जाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ द फिलिफॉर्म अपैरेटस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिनर्जिड्स। ओके, next is your polar nuclei. Polar nuclei is nothing but the central cell. Okay, the both polar nuclei fuse with second male gamete. Now if you remember, हमने male gamete के बारे में पढ़ा था। कुछ इस तरीके से पोलन ट्यूब होती है, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बने थे, अगर आपको याद है ठीक से। तो एक मेल गैमेट तो एक सेल के साथ फ्यूज होगा, दूसरा मेल गैमेट किधर होगा? एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होगा, दूसरा मेल गैमेट आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियाई मतलब कि दिस थिंग। ओके, दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, सेंट्रल सेल के साथ। तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? ये मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस, ओके, मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस, और इसके अंदर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है। तो मतलब टोटल हमको कितना न्यूक्लियस वाला कंपाउंड मिलेगा? 3 न्यूक्लियस वाला, और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम उसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PEN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिए। ये कितने इसमें, ये कितने मतलब न्यूक्लियस से बना है? कितने न्यूक्लियस फ्यूज्ड है इसमें? 3N। एक मेल गैमेट का जो सेकेंड मेल गैमेट है, वापिस बोलती हूँ, हमने जब मेल गैमेट पढ़ा था 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होगा और एक मेल गैमेट जो बचा है वो जाके किसके साथ फ्यूज होता है? सेंट्रल सेल के साथ। सेंट्रल सेल में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है, ये गैमेट का और एक न्यूक्लियस ऐड होके कितने न्यूक्लियस हो गए? 3 न्यूक्लियस हो गए। तो ये 3 न्यूक्लियस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
मतलब यही आगे जाके डेवलप होकर बन जाता है एंडोस्पर्म, एंड दिस एंडोस्पर्म इज नथिंग बट जब तक आपका सीड फोटोसिंथेसिस करने ना लग जाए, मतलब जब तक सीड में से रूट और प्लूम्यूल, रेडिकल और प्लूम्यूल ना निकल जाए, तब तक उस सीड को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म। ओके, और एंडोस्पर्म का न्यूक्लियर कंटेंट कितना है, मतलब उसके अंदर कितने न्यूक्लियस फ्यूज्ड है? 3। ओके, ऑलराइट। इट नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का क्या काम है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। सो इट नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंड लास्टली द एंटीपोडाल सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द चलाजल एंड, ये एम्ब्रियो सेक के ऊपर की तरफ, चलाजा की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर दी एक्सेसरी सेल्स। एक्सेसरी सेल्स का मतलब मैंने क्या बताया है? एक्स्ट्रा हेल्पर सेल्स। तो ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इनका कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं है, दे जस्ट फंक्शन एज हेल्पर सेल्स, जो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो दे डीजनरेट, ये खत्म हो जाते हैं, दे डीजनरेट देमसेल्व्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। I hope that the entire structure of Anatropous ovule and the introduction of Gynoecium, that is the pistil, female reproductive whorl, was very much clear to you. Okay, just go through each and every word in very much detail, because आपका जो न्यू सिलेबस आया है उस न्यू सिलेबस में इतना डिटेल पोर्शन नहीं दिया है. ओके, आई हैव कवर्ड सम ऑफ इट फ्रॉम द अर्लियर सिलेबस. क्यों? फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू. आपको एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजों का फंक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये इतने डिटेल में बताया है. आपके 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं दिया है, तो मेक श्योर दैट यू learn everything, you read everything, okay, and you make note of everything. I hope that the lecture is helpful to you, and it has been helpful since the first lecture. If you like our channel and if you like the lectures that we give you about physics and this biology lectures, then please do like, share and subscribe to our channel. And if you have any queries, you are always welcome in the comment section. Thank you.